Hello everyone. Good evening. I'm audible to you. Yes, please let me know in the chat box. Good evening everyone. Yes. Are you there? I'm audible to you all. Hello, good evening. Okay. So today, as you can see, we are starting with arithmetic progression. Okay. So in this lecture, I will just give you a brief introduction about this chapter and what are the important formulas that we have to go through so that you can easily secure 5 to 6 marks of this chapter. Okay. So today's chapter is nothing but arithmetic progression. So before starting with the actual chapter, please let me know in the chat box. I'm audible to you all now. Yes. Fine. So we'll start then. So as I told you, this is a very important chapter from board point of view as well as it is easier as well. बिकॉज अगर आप देखोगे तो इस पूरे चैप्टर में आपके पास सिर्फ दो ही फॉर्मूलेज है फर्स्ट फॉर्मूला इज नथिंग बट इन हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर nth टर्म एंड सेकंड फॉर्मूला आपका रहेगा एसेंस से रिलेटेड बट बिफोर दैट हम सिर्फ ये देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज यू कैन सी हियर arithmetic progression is nothing but we just have to deal with one of the sequence. Now, what is the meaning of sequence? Sequence is nothing but collection of some numbers such that which follows a particular sequence in that case or a particular relation. So similarly, if suppose I will give you that we have two types of collections. The first one is nothing but suppose we have 1, comma 2, comma 3, comma 4 and so on. Suppose second one is given as 1, then 3, then 5, then 7 and so on. And the third one is that 1, then 2, then 4, then after that suppose we'll consider 7, 11 and so on. So we are discussing that progression is nothing but if we are dealing with the progression, then progression is nothing but if we have a collection of numbers then all those numbers should definitely follow a relation there. As you can see, first one is the very easiest one. अगर आप बोलते हो 100 का बोलो तब भी आप easily बोल पाओगे, right? Because we are just writing the sequence of the natural number. The second one is nothing but 1, 3, 5, 7 and so on, which is nothing but again it will be a collection of all odd numbers, right? Then next one is nothing but we have something 1, then 2, then 4, then 7 and so on. So अगर वहां पे आपको रिलेशन कोई दिखाई देता है तो उससे आप बोलने वाले थे सीक्वेंस बट इन दिस केस अगर आप रिलेशन लेने की कोशिश करोगे देन यू कैन सी दैट फर्स्ट एंड सेकेंड में आपको डिफरेंस मिल रहा था 1 का अगर आप सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बारे में डिस्कस करते हो देन वहां पे रहेगा आपका डिफरेंस 2 अगर आप सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में कंसीडर करोगे देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 4 तो ये जो ऐसा कुछ रहेगा मतलब डेफिनेटली एक पैटर्न फॉलो करते हैं बट जो पैटर्न रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड में अलग है सेकंड एंड थर्ड में कुछ अलग है थर्ड एंड फोर्थ में कुछ अलग है
तो इस टाइप का आपको कुछ भी नहीं है. वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ प्रोग्रेशन और दिस इज अ सीक्वेंस जहां पे आप एपी का यूज कर सकते हो. क्लियर हो गया. अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है देन डेफिनेटली इट इज अ सीक्वेंस. इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेशन बिकॉज़ अगर आपके पास कुछ फर्स्ट 3 और 4 टर्म्स रहेगा तो डेफिनेटली आप आगे वाले टर्म्स सारे गेस कर सकते हो. इसके लिए हम उससे बोलते हैं एज अ प्रोग्रेशन. तो अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट as you can see here difference between two consecutive terms is constant. जैसे आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा था सेकंड में दिखाई दे रहा था. बट अगर आप ये थर्ड वाला सीक्वेंस कंसीडर करोगे फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस आपको 1 मिलेगा बट सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस कुछ आपको 2 मिलने वाला है. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे हमने डिस्कस किया फर्स्ट 5 to 6 मिनट्स में हम ये पूरा चैप्टर रिव्यू कर देते हैं. जितने भी आपको यहाँ पे फॉर्मूलेस दिखाई देंगे वो सारे फॉर्मूलास हम एक साथ कंसीडर करते हैं एंड देन वी गो फॉर सॉल्विंग द p-values here. Fine. So arithmetic progression is nothing but a progression जहां पे आपको consecutive term का डिफरेंस सेम मिलता है. जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा था फर्स्ट वन विल बी है देन नेक्स्ट आप कंसीडर कुछ a प्लस डी देन अगेन आप उसमें d ऐड करोगे अगेन आप उस पे d ऐड करोगे एंड ऐसे करते करते आपको मिल जाएगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ a. नाउ कंसीडर हियर सपोज आप फर्स्ट टर्म विल बी a. यूजुअली हम a ही कंसीडर करते हैं. सेकेंड टर्म के लिए हमने उसमें d कर दिया था ऐड. आप क्या बोलने वाले थे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ap then the difference between first and second term should be same as second and third term. अगर आप AP कंसीडर करते समय फर्स्ट में प्लस डी कंसीडर कर रहे थे देन अगेन थर्ड टर्म के लिए आप सेकेंड में प्लस डी कंसीडर करोगे. समझ में आ रहा है. देखो अगर सेकेंड टर्म बोल रहे हो तो वहां पे आप वन टाइम डी ऐड करने वाले थे. अगर आप थर्ड टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हो देन वहां पे हम टू टाइम्स डी ऐड कर रहे हैं. सिमिलरली for next term we'll add one more times d into it so it will be a plus 3d. are you getting this one. अगर आपको फर्स्ट टर्म डिस्कस करना था जो यूजुअली आप इधर a1 और t1 ऐसे डिनोट करते हो first term will be a only. For second term we are adding one time d into it. For third term we are considering a plus 2d. For the fourth one we are considering a plus 3d. तो ये जो भी कुछ आपको नाइंसाफी यहाँ पे दिखाई दे रही है obviously what is the meaning of नाइंसाफी. अगर सेकंड के लिए but one time d is there. अगर आप टर्म के बारे में डिस्कस करो तो वहां पे आपके पास सिर्फ 2d है. वैसे ही आगे जाते जाते आपको nth टर्म का फॉर्मूला मिलता है एंड फॉर दैट आप सिर्फ एक ही कंसीडर यहाँ पे कर रहे हो. अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए अगर आप d के बारे में डिस्कस कर रहे हैं देन d इज नथिंग बट आप कोई भी टर्म कंसीडर करो उस टर्म के जो पिछली वाली टर्म रहेगी वो सिर्फ आप उसमें से करने वाले थे सबट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल d इज नथिंग बट t2 minus t1. d is nothing but t3 minus t2, t4 minus t3 and so on. We can say that the value of d will be an minus an minus 1. अब ये क्यों आपको याद रखना है बच्चों बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा. सपोज वी हैव अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज 4. okay, suppose our first term will be 4 then the next one will be 7 then the next one will be 10 then the next one will be 13 and so on. तो मैम ने क्या बोला था आपको कोई भी आपको डिफरेंस कंसीडर करना है बट वो जो डिफरेंस रहेगा फॉर दैट नेक्स्ट में से आप प्रीवियस टर्म माइनस करने वाले हो. गेटिंग दिस. फॉर एग्जांपल 7 minus 4 10 minus 7 13 minus 10. सपोज अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ आपके पास ऐसे रहेगा 20 then after that 15 then 10 then 5 and so on. So in that case अब 20 minus 15 करने के लिए इसके लिए आपको t1 minus t2 कंसीडर नहीं करना है. जब भी आपको d के बारे में चेक करना है then d is nothing but आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर
थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग दिस वन? ये रहता है आपका इजीएस्ट वे डी के बारे में। एंड ये जो यहाँ पे हम ना इंसाफी के बारे में बोल रहे थे, अगर फर्स्ट टर्म है देन वी आर जस्ट एडिंग 0 टाइम्स डी इनटू इट। अगर आप सेकेंड टर्म के बारे में बोल रहे हो तो सिर्फ आप 1 टाइम डी कंसिडर कर रहे हो। अगर थर्ड है तो फिर 2 टाइम्स डी। अगर फोर्थ टर्म है तो फिर आप ए में 3 टाइम्स डी ऐड कर रहे हो। ऐसे ही करते करते आपको जनरल टर्म मिल जाएगा। बिकॉज ये जो भी कुछ था ये नाइंसाफी वाला केस था, राइट? अगर थर्ड टर्म है तो 2 टाइम्स डी। अगर आपको फोर्थ टर्म कंसिडर करना है तो यू आर जस्ट एडिंग 3 टाइम्स डी इनटू। सिमिलरली अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है देन इन दैट केस यू विल जस्ट ऐड n minus 1 times d into it. ओके, सो जो आपका ये एपी का पूरा चैप्टर है यहाँ पे सिर्फ आपको दो टर्म के लिए फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। फर्स्ट वन रहेगा आपका tn का फॉर्मूला एंड सेकंड वन विल बी द फॉर्मूला फॉर sn जो हम एक्चुअली दो वे लिखते हैं। बट ये रहेगा आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने इतनी बार यूज किया है कि आप ऐसे नींद में भी बोल सकते हो, राइट? तो क्या रहेगा? Tn इज नथिंग बट जब आपको कोई nth टर्म फाइंड आउट करना होगा जहां पे आपके पास a की वैल्यू है, where a is nothing but the value of first term, n is nothing but the number of terms। सपोज अगर a 10 करना है तो n की जगह पे आप 10 यूज करोगे। अगर आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है so that you will put n as a 20 and so on, and d is nothing but common difference, right? जो आप फाइंड आउट करने वाले या तो a2 minus a1 या फिर a3 minus a2 and so on। Are you getting this one? जो भी कुछ आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं जितना भी चाहे वो ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, फिर भी हमेशा एपी के क्वेश्चन आपको इजी ही मिलने वाले हैं। देखो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला आपके पास टोटल 4 टर्म्स है, राइट? कोई एक रहेगी आपकी टर्म टीएन की, देन आएगा ए, देन आएगा एन, देन आएगा डी। ये जो 4 टर्म्स रहेंगे आपके पास, 4 में से डेफिनेटली कोई 3 आपको गिवन हो गए एंड एक ही आपको करना है फाइंड आउट। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, देन जस्ट नेक्स्ट 5 मिनट्स में जो ये आपका एसएन का फॉर्मूला रहने वाला है ये भी हम डिस्कस करेंगे एंड डायरेक्टली वी गो for solving various questions. Okay, see sum of the terms of AP। अब जब भी आपने ये SN का फॉर्मूला याद रखा है या फिर कई बच्चों ने ऐसे डायरेक्टली किया होगा, अगर आपको ये अगर है तो लास्ट टाइम में हमने जो कंसीडर किया था SN इज नथिंग बट जो भी आपके पास सीक्वेंस रहने वाला है, सीक्वेंस मतलब A1, A2, A3 एंड सो ऑन। जब आप सम के बारे में कंसीडर करते हो मतलब सिर्फ आपको उसकी सीरीज कंसीडर करनी है, जितने नंबर्स आपके पास है सबकी आपको टोटल कंसीडर करनी है, राइट? एंड फॉर दैट टोटल हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं Sn is equal to n by 2 times 2a plus n minus 1d and so on। ये कहाँ से आता है? इतना बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए या नहीं चाहिए? सो इन दैट केस आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, Sn is nothing but n by 2 times first term plus last term। अब ये आता कहां से है ये देखते हैं। इजीएस्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। ओके, अगर आप सीक्वेंस के बारे में कंसीडर करते हो तो सिर्फ आप कॉमा कॉमा साइन कंसीडर करते हो। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, कॉमा साइन हम रिप्लेस कर देते हैं प्लस साइन से, दैट्स इट। ओके, सो कैन यू टेल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। मतलब यहाँ पे आपके पास 9 टर्म्स रहने वाले हैं। फर्स्ट 9 टर्म्स की आप एडिशन कंसीडर करने वाले थे, हेंस आई विल जस्ट यूज S9 हियर। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप? जो ये आपके पास S9 दिखाई दे रहा है हम एज इट इज लिखेंगे। द ओनली पार्ट इज दैट in this case 1 2 3 and so on ऐसे लिखते रहिए। अलावा आप कंसिडर करने वाले हो सेम नंबर, जस्ट आप वो रिवर्स वे में लिखने वाले हो, मतलब 9 plus 8 plus 7 and so on up to 2 plus 1। यहाँ पे कुछ आएगा आपका 8 and so on, राइट? याद आ रहा है आपको कुछ? ऐसे ही हमने ये पूरा किया था डिराइव, राइट? सो
अगर आपको इसकी एडिशन कंसिडर करनी है देन आई कैन सी दैट अगर 1 + 9 लेते हो फिर भी आपको आंसर 10 मिलेगा, 2 + 8 लेते हो फिर भी आपको आंसर 10 मिलने वाला है, एंड सो ऑन. सो दिस इज नथिंग बट अगर आपके पास ये ऐसे कुछ दो टर्म्स रहने वाले हैं देन 2 times of S9 equals to 1 + 9, 2 + 8, 3 + 8 एंड सो ऑन. सबकी एडिशन आपको वैसे भी 10 ही मिलने वाली है विच इज नथिंग बट 1 + 9. इसके लिए हम वो A1 + AN कंसिडर करें. बट ये कितने टाइम के लिए आपको 10 मिलने वाला है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9 आपके पास था. या फिर आप ये भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे जो भी रहता है आपका n का नंबर वी जस्ट हैव टू पुट इट हियर. दैट्स इट. So you can say that S9 equals to 9/2 into 1 + 9. ये 1 कहां से आता है? जो आपका फर्स्ट टर्म रहेगा. 9 कहां से आता है? जो आपका सेकेंड टर्म रहेगा. So that's it. सिर्फ आपका एपी में ये सिर्फ 3 फॉर्मूला को अच्छे से याद रखने हैं. 3 मतलब अगर सेकेंड फॉर्मूला इजीली याद रखते हो तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस वन because we know that an is nothing but a plus n minus 1 times b. वो हमारा 9 सा भी वाला केस, right? So we'll just directly try to solve few questions here. One more thing. अगर आप एपी का वेटेज चेक करते हो देन इट विल बी अराउंड 5 to 6 मार्क्स. बट हमेशा आपको एपी के क्वेश्चन के लिए और में एपी का ही क्वेश्चन मिलने वाला है. द ओनली केस इज दैट आपको ये सिर्फ दो फॉर्मूला अच्छे से याद रखने हैं सो दैट आप इजीली ये 6 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, राइट? एंड चेक क्या करना है? या तो आपको एन का फॉर्मूला यूज करना है या फिर एसएन का. एज यू कैन सी हियर द क्वेश्चन that the sum of first 30 terms. Sum of first 30 terms, it means that you just have to use the formula for sum. Sum के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला रहने वाले थे. चलो एक बार करते हैं रिवाइज. आप भी लिखने की कोशिश करो. Sn is nothing but जो easiest फॉर्मूला हमने याद रखा है which is nothing but जितने टर्म्स हमारे पास है just divide it by 2 and in the second bracket we have to consider the first term plus last term. Done up to this? ये इतना क्लियर होना है. तो n is nothing but number of terms. देखो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. अगर आपको ये पता है that they are talking about 30 terms, it means that I have the value of m as a 30. ये रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड क्या रहेगा? देखो first term is given to us which is nothing but -30. First term is nothing but -30. ऐसे करते करते लास्ट वाला केस. Now in that case आपके पास an की वैल्यू नहीं थी. an की वैल्यू नहीं है. It means that I have to use the formula for an which is nothing but ये n/2 आपका as it is रहेगा. ये a1 भी आपका as it is रहेगा. And we know that an is given as a1 plus n minus 1 times d. हमारा 9 सफी वाला फॉर्मूला, राइट? गेटिंग दिस वन. अगर आपको n तक जाना है तो आपको n minus 1 times d उसमें करने पड़ेंगे add. So for this we'll just use the formula for Sn which is nothing but n/2 times 2 times a which is nothing but the first term. We can easily check that value of a will be -30 in this case plus n minus 1 times d. तो जितने भी वैल्यूज आपके पास है, जितने वैल्यूज गिवन है, सबका यूज करो. यू विल इजीली गेट इट आंसर. यहाँ पे क्लियर हो रहा है? मतलब आपका वे ऑफ थिंकिंग क्लियर हो रहा है. यहाँ पे n का वैल्यू तो डायरेक्टली पता था आपको 30 पुट करना है. फर्स्ट टर्म इज गिवन एज -30 and don't get confused between d because d is nothing but second में से आपको first term माइनस करनी. That is -24 minus of -30 which is nothing but -24 plus 30. So answer will be 6. It means that now we have the value of m, we have the value of a and we have the value of d. We'll just put it in this formula so that you will get your answer. Okay? Clear हो रहा है ये बात? See,
First term is given as a minus 30, second term is minus 24, hence D is nothing but second minus first, just हमने find out किया था. This will be 6, hence S30 equals to n by 2, which is nothing but 30 by 2 times 2a plus this. And first term is given as minus 30. So solving for this, you will easily get its answer. Then up to this, clear हो रहा है ये part? There should be 6 here, right? Okay. So 15, 30 upon 2 is nothing but 15 times 2 times 8. 8 is nothing but minus 30. So 2a will be minus 60. Minus 60 plus 29 6 because we are talking about S30. मतलब 30 minus 1 आपको करना है consider. So 29 6 is 174. 174 minus 60. Right? So its answer will be 1716. Getting this one? ये रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट. अगर आप चेक करोगे तो इसी के लिए आपको एज अ सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है. अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू अच्छे से क्लियर है तो फिर आपको मिल जाएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं रिपीटेडली एंड करना है. एंड अगर अगेन बोला जाएगा एमपी के लिए, देन ऑब्वियसली देयर आर ओनली टू फॉर्मूले, सिर्फ उसका आपको करना है यहाँ पे यूज. दैट्स इट, राइट. सी नाउ देखो, in an AP, if Sn is given as n times 4n plus 1, then we have to find the value of AP. अब AP का मीनिंग क्या है, आपको AP फाइंड आउट करना है, मतलब जो भी कुछ रहे के पास प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म, then you will just add common difference into it, then again आपको उसमें one time d add करना है and so on, correct. So for this आपको फर्स्ट टर्म तो फाइंड आउट करनी होगी, बट आपके पास जो भी कुछ गिवन वैल्यू है वो सिर्फ Sn के बारे में है. बट वी नो दैट Sn का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे आपको n दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट अ जनरल टर्म. अगर आप n की जगह पे 1 पुट करते हो, n is nothing but Sn मतलब n टर्म्स तक आप सब टर्म्स लिखोगे, देन उसके बाद आप उसकी एडिशन करने वाले हो. But if I will put n is equal to 1 here, then obviously LHS will be S1 and RHS पे क्या मिलेगा, n की जगह पे सबसे पहले 1 पुट किया, then 4 times n plus 1, which is nothing but 4 plus 1, so its answer will be 5 here, correct. S1 का मतलब क्या रहता है, S1 is nothing but first term तक सबकी total, but first term तक सबकी total लेना है. It is same that S1 is nothing but the value of your first term, right? मतलब अभी आपको A का वैल्यू तो मिल गया. The only part is that we have to find out what will be the value of B so that आप ये A लिख सकोगे. Getting this one clear हो रहा है ये part? तो जिस वजह से आपने S1 फाइंड आउट किया था, सिमिलरली विल सॉल्व फॉर S2. अगर Sn का फॉर्मूला यूज करके n की जगह पे आप 2 पुट करते हो तो आपका LHS क्या हो जाएगा, Sn is nothing but n की जगह पे हम 2 पुट करने वाले हैं. So S2 equals to 2 times 4 into 2 plus 1, 4 into 2 plus 1 which is nothing but क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे 9, करेक्ट. सो ये रहेगा कुछ 2 times 9, so value of S2 is nothing but 18. अब थोड़ा सा गौर करवाइए, राइट. क्या है देखो, आपके पास S2 का वैल्यू था, बट वी नो दैट S2 is nothing but first 2 टर्म तक आपको सब करने हैं ऐड, दैट इज S2 is nothing but A1 plus A2. S2 is nothing but A1 plus A2. Now we have the value for A1, we have the value for S2. So just putting this value, you can easily say that what will be the value of 2 here, right? S2 का वैल्यू हमें मिला था यहाँ पे 18. A1 is nothing but A1 की वैल्यू आपको मिली थी 5 plus A2. That's it. So अगर सिर्फ आपको A2 फाइंड आउट करना है, then it is nothing but 18 minus 5. So it will be 30. अब देखो आपके पास A1 का वैल्यू है, आपके पास A2 का वैल्यू है, and we know that A2
is nothing but a plus b. I think rest part आप easily कर पाओगे. Correct? समझ में आ रहा है इतना पार्ट. A2 का मतलब क्या रहता है? A2 इज नथिंग बट A प्लस B. तो अगर आपको A की वैल्यू 5 है ये पता है, A2 का वैल्यू आपका 13 रहने वाला है, then can you solve for that D? Right? D is nothing but A2 minus 7. That's it. ऐसे ना आपके पास था, आप सिर्फ n की जगह पे 1 2 3 ऐसे पुट करते करते वैल्यू आपको मिल जाएगा. फर्स्ट टाइम आपको मिला था 5, देन 13. अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, देन वैल्यू ऑफ d इज नथिंग बट 8. सो आप सिर्फ 8 यहाँ पे ऐड करते जाओ. क्लियर हो रहा है ये पार्ट? गेटिंग दिस वन? आपके पास एसएन था, जनरलाइज टर्म थी, आप सिर्फ वहां पे वैल्यू पुट करने वाले थे. दैट्स इट. यू कैन इजीली सी. ओके. सो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था. राइट? अब नेक्स्ट पार्ट देखो. यूजुअली बहुत बार एपी से रिलेटेड केस स्टडीज आपको पूछे गए हैं. अगर आप अभी भी कंसिडर कर सकते हो, वो ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन फिक्स रहता है, या फिर नंबर ऑफ बॉयज इन द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस टाइप का कुछ रहेगा. वैसे ही ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड ऑन द एपी. अब केस स्टडी में एक चीज अच्छे से आपको क्लियर हो जाती है कि क्लियरली आप देखोगे ये पूरा क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा कि वहां पे गिवन क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. So in a mathematics, relations can be expressed in a various way. The matchstick patterns are based on the linear relation. The different strategies can be used to calculate the number of matchsticks used in the different figures. One such pattern is shown below. I hope you can see this one, right? Answer the following question using arithmetic progression. जैसे हम कंसिडर कर रहे थे AP बेस्ड, अगर आपको केस स्टडीज आती है, फर्स्ट थिंग इज दैट क्लियरली मेंशन्ड रहता है कि आपको यूज क्या करना है. एपी का केस है भाई, तो एपी इज नथिंग बट ए का वैल्यू पता होना चाहिए, डी का वैल्यू पता होना चाहिए, अब जो भी कुछ एन रहेगा, एसएन रहेगा, वो आप यूज करोगे. सो हियर figure 1, figure 2, figure 3 and so on. What we have to do? Write the AP for the number of triangles used in the figures. Also, write the nth term of this AP. अब AP का meaning क्या है? AP is nothing but number of triangles. How many triangles are there in the figure 1? Right? You can easily check it. There will be 4. Then यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे? 1 2 3 4. Right? So for the second figure, there will be 1 2 3 4 5 6 triangles. नेक्स्ट में अगर आप चेक करते हो, तो ये दो तो आपके फिक्स रहने वाले हैं ही. यहाँ पे सिर्फ आप क्या करोगे, और दो ट्रायंगल्स करोगे ऐड. मतलब फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थे 4, सेकेंड फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल रहे हैं 6, थर्ड फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल रहे थे 8 एंड सो ऑन. कैन सी. अगर एपी का क्वेश्चन है, देन इट्स जस्ट इजी. ए का वैल्यू चेक करो, डी का वैल्यू चेक करो, जो भी कुछ क्वेश्चन रहेगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो 2 मार्क्स के लिए जो पूछा गया है आपका फर्स्ट केस, इट इज नथिंग बट व्हाट विल बी nth टर्म ऑफ दिस एपी. मतलब आपको tn का वैल्यू फाइंड आउट करना है. कई बच्चे tn की जगह पे an लिखते हैं, दोनों भी यूज करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें. सो tn इज नथिंग बट हमारा 9 वाला केस. राइट? tn का फॉर्मूला क्या था आपका? अगर थर्ड टर्म चाहिए, देन आप 2d ऐड करेंगे a में. अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, तो आप 4d ऐड करने वाले थे. ऐसे ही अगर आपको tn चाहिए, then we know that its formula is given as a plus m minus 1 times d. करेक्ट? क्लियर हो रहा है ये इतना पार्ट? तो a is nothing but number of triangles in the first figure, जो आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे रहा है. आपके पास a1 का वैल्यू था, a2 का वैल्यू है, a3 का वैल्यू है. यू कैन इजीली गो विद दिस t. एंड आपको जनरलाइज क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको nth टर्म का ही वैल्यू पूछा गया था. सो n की वैल्यू आप एज इट इज करोगे. क्लियर हो रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका वे ऑफ थिंकिंग क्लियर हो गया. नाउ जस्ट गो विद द सेकंड क्वेश्चन. Which figure has 61 matchsticks? मतलब नंबर ऑफ, देखो, which figure has 61 matchsticks here? Matchstick is nothing but, ये क्लियर हो रहा है आपको? मैचस्टिक दिखाई दे रहा है,
फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कितने हैं, राइट। एपी फॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल मतलब आप ये कंसिडर करने वाले थे। वैसे ही अगर आप मैचस्टिक के बारे में कंसिडर करते मतलब नंबर ऑफ मैचस्टिक, करेक्ट। देखो क्या रहेगा, जो आप फर्स्ट कंसिडर कर रहे थे, इट इज नथिंग बट, फर्स्ट में आपको 4 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे थे, सेकंड फिगर में 6 ट्रायंगल्स, 8 ट्रायंगल्स एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 4, मतलब ए का वैल्यू आपका हो गया 4, ए का तो वैल्यू मिल गया। देन डी का वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करोगे, डी इज नथिंग बट ए2 माइनस ए1, या फिर आप चेक कर सकते हो ए3 माइनस ए2। तो केस में आपको d का वैल्यू मिलने वाला था 2, सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ d एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर n। तो यहाँ पे सिर्फ आप a को एंड d को रिप्लेस कर दो 4 एंड 2 से, सो यू विल गेट द जनरलाइज्ड टर्म दैट इज वैल्यू ऑफ nth टर्म विल बी 2 plus 2n। गेटिंग दिस वन, ये क्लियर हो रहा है पूरा केस। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द सेकंड क्वेश्चन हियर, ओके। देखो यूजुअली बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम ये केस स्टडी बहुत कुछ रहता है, क्वेश्चन ही इतना बड़ा रहता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, जितना ज्यादा आपके पास रहता है उस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, उतना अच्छे से आप ये सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगेन जस्ट लुक एट इट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो एपी फाइंड आउट करनी थी वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की थी, बट सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था दैट हाउ मैचस्टिक्स आर देयर। मैचस्टिक्स आर देयर मतलब जो फर्स्ट में आप सिर्फ ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने वाले थे, इंस्टेड ऑफ दैट सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको ये मैचस्टिक्स जितने हैं, मतलब जितने आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वो चेक करना है, राइट। देखो अगर फर्स्ट फिगर का आप चेक करते हो, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे 12 मिला। आपका आंसर क्या मिला आपको, करेक्ट। अब सेकंड आपको कंसिडर करना है, सेकंड के लिए भी आप ऑब्वियसली सेम क्या करोगे, जितने ये आपको यहाँ पे सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ आपको करने हैं कैलकुलेट। सी 1 देन 2 3 4 then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। खुश, मुझे तो 19 मिले, आप खुद के चेक करो। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करते करते कैन यू टेल मी दैट व्हाट विल बी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन थर्ड फिगर, आंसर इन द चैट बॉक्स। कितने रहेंगे फिगर्स चेक करो। सिर्फ लाइन सेगमेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, बिकॉज आपका फर्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, इसलिए हमने ट्रायंगल्स फाइंड आउट किए। बट सेकंड केस में आपको मैचस्टिक्स कितने हैं ये चाहिए, सो फॉर दैट आपको मैचस्टिक्स सिर्फ करोगे काम, ओके। गेटिंग दिस वन। सो अगर यहाँ पे चेक कर दो, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड ये जो बीच में आपको मिलने वाले हैं ये पूरे हो जाएंगे आपके 10। गेटिंग दिस वन। बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, डेफिनेटली अगर आप ये गौर से नहीं देखोगे देन यू विल लूज योर मार्क हियर, ओके। सो अच्छे से देखो, फर्स्ट फिगर में हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मिले थे 12, सेकेंड फिगर में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स थे 19 देन 26। सो आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट फिगर में आपको टोटल 61 मैचस्टिक्स मिलने वाले। सो इट मींस दैट नंबर ऑफ, अगर फाइंड आउट करना है एन का फॉर्मूला यूज करो, एंड द फॉर्मूला फॉर एन इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स बी। So for that you have to find out what will be the value of a. A is nothing but the value of first term. D आप किससे find out करते हो, a2 minus a1 और a3 minus a2, okay. So a2 minus 7 और a3 minus a2, its answer will be 7. It means that now we have the value of A, value of B. आपको M करना है find out and AN का value 61 रहेगा, यही पार्ट था। So just use it, you will get your answer. सबसे पहले आप ये 61 minus 12 consider कर सकते हो, its value will be 7 and minus 7. So again minus 7 plus 12 consider करके जो 5,
माइनस का कंसिडर करोगे, यू विल गेट 7 एन आंसर 56 एंड n इज इक्वल टू 8 आएगा। ये बिल्कुल भी रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं था, करेक्ट? समझ में आ रहा है? जब भी आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जितना अच्छे से आप क्वेश्चन समझ सकते हो उतना ही इजीली आप उसका आंसर बता सकते हो। डन? समझ में आ रही है बात? ओके ना, द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मैंने जैसे आपको बोला था कि एपी में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूलेस कैसे यूज करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। वहां पर भी हम सबसे पहले देख रहे हैं questions based on the formula for an. See what is the question here? The first term of an AP is P. Okay, first term तो हम A कंसिडर कर रहे हैं and its common difference is Q. That is D का वैल्यू आपको Q गिवन है। कितना सीधा साधा क्वेश्चन है, राइट? व्हाट विल बी इट्स 10th टर्म? यू कैन सी ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, राइट? 1 मार्कर क्वेश्चन मतलब उतना ही कम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता होता है अगर ए 10 चाहिए, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है उसका। ए एन इज नथिंग बट 9 का भी वाला फॉर्मूला। अगर आपको ए 10 चाहिए देन आप 10 में से 1 करोगे माइनस, आप ए में 9 भी करोगे ऐड। So you have the value of A which is nothing but P. You have the value of D which is nothing but Q. So its answer will be सीधा साधा क्वेश्चन, right? Its answer will be P plus 9Q which is nothing but answer C. 1 marker question. नाउ सी दिस वन। ये अब तक हमने नहीं किया, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट अगेन इट इज अ क्वाइट इजियर वन। जब आप एपी के बारे में कंसिडर कर रहे हो, एपी इज नथिंग बट आपको ऐसे सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है जहां पे डिफरेंस रहता है कॉमन। कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस अगर आपको मिलता है देन वो बन जाता है आपका एपी। नाउ सी दैट we have three terms given to us which is nothing but a minus b bracket square, a square plus b square and a plus b bracket square। जहां पे आपको एपी की केस में डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई नहीं देती है, आप थोड़ा गड़बड़ा जाते हो, करेक्ट? करना क्या है हमें, देखो अगर आपको एपी में है ये फाइंड करना है, ये जो बड़े वाले टर्म्स मिल रहे हैं वो थोड़ा आप कर दो स्किप। सपोज आपको ये चेक करना है दैट वेदर एबीसी आर इन एपी और नॉट। अगर एपी है तो क्या चाहिए आपको, सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस शुड बी सेम एज थर्ड माइनस सेकेंड का डिफरेंस। सो सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ये ऐसे कुछ है आपके पास। तो आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या रहेगा, अगर एपी है ये प्रूव करना, इट मींस दैट उनका डिफरेंस सेम रहेगा कि आपको चेक करना। सो फॉर दैट सेकेंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके देखो आंसर क्या मिलता है। आफ्टर दैट just try to find out what will be the difference of third minus second। अगर ये दोनों भी डिफरेंस आपको सेम है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, एंड कॉमन डिफरेंस है दैट गिवन रेशन इज इन द ए। समझ में आ रहा है? तो फिर सेकेंड टर्म क्या था आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट a minus b whole bracket square there, okay, and it is a quite easier one, right? A minus b bracket square is nothing but a square minus 2ab plus b square, but don't forget that there is a negative sign before that bracket। so जब आप ये bracket करोगे ओपन, आपको माइनस साइंस कंसीडर करनी है, करेक्ट? दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर चेक कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो प्लस 2 टाइम्स ए बी माइनस बी स्क्वायर। दिस विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट इट्स आंसर एज अ ट्वाइस ऑफ ए बी। इफ यू आर गेटिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, तो वैसे ही आप चेक करोगे थर्ड माइनस सेकेंड का केस, अगेन अगर वो भी आपको मिलता है ट्वाइस भी, देन आप ये बोल सकते हो here difference is same, hence three terms are in AP। that's it। see अगर आप थर्ड माइनस सेकेंड कंसिडर करोगे दैट इज a plus b स्क्वायर, करेक्ट?
So a plus b whole bracket square is nothing but a square plus b square plus 2 times a b, and you will just subtract second term from it, which is nothing but a square minus b square. So again this will get cancelled and you will get its answer as a 2b only. So as second minus first is same as third minus second, hence this is true. That is given three terms are in AP. Okay. Now do this one. सिर्फ चेक क्या करना है, whether should use the formula for an or SN. That's it. See, as you can see here, आपको बीच में प्लस साइन दिखाई दे रही है. बीच में प्लस साइन मतलब डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रहेगा सम ऑफ एन टर्म्स का. तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, SN, which is given as n by 2 into, जब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रहता है तब आप a1 plus an का यूज करने वाले थे. बट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, राइट. मतलब n का भी वैल्यू आपको पता नहीं है. सो फॉर दैट आप फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करोगे, which is given as 2a plus n minus 1 times 2. ओके. सो फॉर दैट क्या आपके पास a की वैल्यू है, डेफिनेटली है, बिकॉज a का वैल्यू 1 है, ये तो हम देख सकते हैं. क्या आपके पास n का वैल्यू है, नहीं. वही तो आपको करना है, फाइंड आउट. एंड कैन यू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, बिकॉज आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टोटल इतने टर्म्स है. तो चाहो तो आप सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो, या फिर थर्ड में से सेकेंड माइनस करो, या फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करो. ईच एंड एवरी केस में आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है. सो डिफरेंस आपको मिलेगा 3. फर्स्ट टर्म विल बी a एंड SN is given as, इतने जो भी आपके पास टर्म है सबकी टोटल आपको मिल रही थी 287. That's it. So 287 is equals to n by 2 times twice of a plus n minus 1 times b. ये सिर्फ आपको करना है यहाँ पे put. And after solving this equation, you will get the answer of n here. समझ में आ रहा है. देखो 287 equals to n by 2 into 2 into 1 plus d का वैल्यू 3 मिला था. So 287 is equal to n by 2 into this. 2 जाएगा LHS पे, अगर ये 2 जाता है LHS में, then it will be 574 equals to 3n square minus n. मतलब 3n square minus n minus 574 is equal to 0. तो ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक है. ऑब्वियसली इजीली आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे यहाँ पे, बिकॉज आपको इसमें का कैलकुलेशन बहुत बड़े हैं. सो फॉर दैट क्वाड्रेटिक के केस में आपके पास ये फॉर्मूला मेथड भी रहता है. फॉर्मूला मेथड इज नथिंग बट, यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो n इज नथिंग बट माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. सो फॉर दैट अगर आप ये करते हो पूरा सॉल्व, तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा. दैट्स इट. गेटिंग दिस वन. सो n का वैल्यू मिलने के बाद आप n की जगह पे सिर्फ 14 पुट करो. बट द क्वेश्चन इज दैट आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना था. एंड x इज नथिंग बट, अगर n का वैल्यू 14 है मतलब s14 गिवन है. अगर s14 है इट मींस दैट ये जो x रहेगा दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 14th टर्म. एंड 14th टर्म अगर ये रहता है देन a14 इज नथिंग बट a plus 13d. आप इसका यूज करो सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a14. डन अप टू दिस. क्लियर हो रहा है ये हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा समझ में आ रहा है आपको. थोड़ा सा लेंदी है प्रोसीजर बट होना भी चाहिए, बिकॉज ये आपका 4 मार्कर क्वेश्चन था. समझ में आ रहा है. तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, आप चाहे कुछ भी कंसीडर करो, ये सारे क्वेश्चंस आपके इजी ही रहने वाले. सी अगेन इस टाइप के अब तक 3 टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हो गए. कई बार आपको 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछा जाता है, कई बार आपको 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछा जाता है, एंड सो ऑन. Okay, so for finding out the sum of first 8 multiples of 3, first 8 multiples of 3 का मतलब क्या है, obviously first multiple will be 3 into 1, then आपको मिलेगा 3 into 2, then आपको मिलेगा 3 into 3 and so on up to 3 into 8. करेक्ट.
ये क्लियर हो रहा है? अगर आप ईच एंड एवरी टर्म में 3 ऐड करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टर्म यहाँ पे मिलने वाला है। सो आपको ये करना है फाइंड। आपको ये पता है दैट यहाँ पे रहेंगे टोटल आपके पास 8 टर्म्स, जहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 3 वन जा विच इज नथिंग बट 3 ही रहने वाला है, जहाँ पे आपका लास्ट टर्म विच इज नथिंग बट ए8 क्या मिलने वाला है आपको 3 into 8 which is nothing but 24. So now you have the value of n, you have the value for first term, you have the value for last term. So for such type of question आप SN के लिए second formula का use करोगे which is nothing but total number of terms divided by 2 into the bracket first term plus last term. सो यहाँ पे आपको n की जगह पे सिर्फ 8 पुट करना है, दैट इज S8 इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 3, लास्ट टर्म इज नथिंग बट 24. जस्ट यूज इट, you will get your answer which is nothing but 4 times 27. That's it. Clear हो रहा है ये पार्ट? Okay. So this is your answer, which is nothing but 27 fourth. That's it. You can easily see the procedure. क्वेश्चन सामने देखते ही क्वेश्चन कौन से टाइप का है ये आप समझने की कोशिश करो। जब आपको वो क्वेश्चन का टाइप क्लियर हो जाएगा, सी नाउ आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एज होमवर्क करना है। ओके, क्या करना है देखो, आपको जैसे आपने फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 कंसीडर किया, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे आपको 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 कंसीडर करना है। मतलब वो क्या रहेंगे 6 देन 12 देन 18 एंड सो ऑन। लास्ट वन रहने वाला है आपका 60। 10 मल्टीपल्स है मतलब n की वैल्यू ऑब्वियसली आप 10 पुट करोगे। फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 6, last term that is 8 10 will be 60 here. So now you have the value of first term, last term and value of n. So obviously for such type of question इस n का फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो, n by 2 into first term plus last term। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आप एज होमवर्क कर सकते हो। ठीक, नाउ we'll just go through this second question। जैसे मैंने आपको बोला एपी के केस में जहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिखाई देते या फिर ऐसे कुछ वेरिएबल टाइप क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जैसे लास्ट वन हमने किया था a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे आपको कुछ a वाला टर्म मिलता है। वैसे तो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट रहने वाला है, बट डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस एपी के बारे में रहते हैं, एपी इज नथिंग बट आपको सीडी याद रखना है। जब भी एपी के क्वेश्चंस आते हैं आपको सिर्फ सीडी रखना है याद, एंड या तो आपके पास पूरे क्वेश्चन में एन का फॉर्मूला यूज करना होगा या फिर एसएन का, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। ओके देन, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्लियरली ये गिवन था दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ एपी, मतलब a2 माइनस a1 कंसीडर करो या फिर a3 माइनस a2 कंसीडर करो, ये तो आपका फिक्स रहने ही वाला है। देन व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इट हियर, सी सेकंड टर्म इज नथिंग बट 3 माइनस a अपॉन 3a, करेक्ट, माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1 अपॉन a। जब भी आपके पास रहते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की कंसीडर करनी है आपको सबट्रैक्शन, इन दैट केस डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम चाहिए then we just have to multiply the numerator and denominator by 3 so that your question is something like this, 3 minus a minus of 3 divided by 3a, correct, done up to this। So this is equals to 3 will get cancelled, minus a over 3a, but again a will get cancelled and the answer of d will be -1/3। जैसे हमने a2 minus a1 के लिए कंसिडर किया है, यू कैन चेक इट फॉर a3 minus a2। जब आपको क्वेश्चन इस टाइप का रहता है दैट चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट, इन दैट केस आपको a2 minus a1 लेना पड़ेगा, a3 minus a2 लेना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट वो क्वेश्चन किया था दैट शो दैट 3 टर्म्स आर इन AP,
वहां पे आपको ये दोनों भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्लियरली फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इट मींस दैट जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है वो तो आप भी रहने ही वाला है, उनका डिफरेंस आपको सेम ही मिलेगा। क्लियर हो रहा है ये पार्ट, समझ में आ रहा है? दैट्स इट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग इज दैट यूज क्या करना है, कौन सा वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, या तो सीडी का क्वेश्चन रहता है, एन का क्वेश्चन रहता है, या फिर एस एन का क्वेश्चन रहता है। बट आई कैन सी मुझे कुछ A7 ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। A7 ये दिखाई दे रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये आपको ए एन का फॉर्मूला करना पड़ेगा यूज। एंड ए एन इज गिवन एज ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। गेटिंग दिस वन, ये पार्ट क्लियर हो रहा है, ये तो पहले से पता है। सो यहाँ पे गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, देखो वी हैव द वैल्यू ऑफ A7 व्हिच इज गिवन एज अ 4। मतलब आपके पास A7 की वैल्यू है एज वेल एज आपके पास n की जगह पे आपको 4 पुट करना है, ये आपको क्लियर हो रहा है। देन कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज अ -4, मतलब d की भी वैल्यू आपके पास है। यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म्स। जितने वैल्यूज आपके पास है सिर्फ यहाँ पे प्लेस करो। अगर आप n की जगह पे 7 पुट करते हो देन यू विल गेट A7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 टाइम्स d। नाउ we have the value of d which is nothing but -4, so d की जगह पे हम लिख देते हैं -4। After solving this, you will get A7 which is given as a 4 equals to A plus 6 times -4, that is 4 equals to A minus 24. So minus 24 aa jayega LHS पे, so it will be plus 4, hence your answer will be 20। कितना चिन्नी टाइप का क्वेश्चन है, राइट? क्लियर हो रहा है? बट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सारे एक में मिलेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये रहता है फॉर्मूला तो इसमें से कोई 3 टर्म्स आपको गिवन रहेंगे, एक टर्म आपको फाइंड आउट करना है। दैट्स इट, गेटिंग दिस वन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है। जस्ट क्वेश्चन रीड करो एक बार। The question is given as the sum of four consecutive numbers in an AP is 32. The ratio of the product of first and last term to the product of the middle terms is given as 7:15. Then find those terms. आपको ये पता होता है, अगर आप एपी के बारे में कंसिडर करते हो तो वो आपके नंबर्स कुछ ऐसे रहते हैं, ए देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। बट अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कंसीडर करोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसीजर आपको मिलने वाली है ना? बिकॉज फोर टर्म मतलब आपको a इंटू ए प्लस डी ऐसे कुछ कंसीडर करना होगा। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, जब भी आपको कंसीडर करने होंगे ऐसे कुछ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इन दैट केस आप वो नंबर्स लिखोगे कैसे, देखो a plus d, a minus d, then a plus 2d, a minus 2d। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये आपका आज नॉलेज है। ओके, जब भी आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कंसीडर करना है तो इन दैट केस आप ये नंबर्स कुछ ऐसे लिखोगे, a minus d, a plus 2d, यहाँ पे लिखोगे a minus d, a minus 2d, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली जब आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कंसीडर करने हैं विच इज नथिंग बट आपको जब ऑड टर्म्स कंसीडर करने हैं, सो फॉर दैट यू विल स्टार्ट विथ a ओनली। जैसे यहाँ पे हमने a प्लस डी एंड a माइनस बी से स्टार्ट किया था। जब आपके पास रहते हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इन दैट केस हम मिडिल टर्म कंसीडर करोगे a, उसके बाद आएगा a प्लस डी, उसके पहले आपको मिलेगा a माइनस डी। ऑलवेज रिमेम्बर दिस केस।
ठीक है, कॉन्जिगेटिव और टर्म्स रहते हैं, देन ए माइनस डी, ए प्लस डी। इस क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स कंसिडर करने हैं। 4 इज नथिंग बट द इवन टर्म। इन दैट केस कंसिडर क्या करना है आपको, सबसे पहले वाले 2 नंबर आप लिखोगे यहाँ पे ए प्लस डी, उसके पहले आएगा ए माइनस डी। नेक्स्ट कंसिडर करोगे ए प्लस टू डी, उसके पहले आएगा ए माइनस टू डी। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब गिवन क्या था देखो, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब ये जो आपके पास नंबर्स है, आप सबकी एडिशन करने वाले हो। एंड वो जो एडिशन आपको गिवन है, एडिशन इज गिवन एज 32। ये ऐसा कुछ है आपका केस, करेक्ट। अगर आप इसकी एडिशन कंसिडर करते हो, देन इट इज गिवन एज 30। नाउ वी विल गेट इट कि हम ये प्लस डी माइनस डी प्लस टू डी माइनस टू डी क्यों कंसिडर कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप ये करोगे पूरे ऐड, देन आई कैन कैंसिल प्लस डी विथ माइनस डी, आई कैन कैंसिल माइनस टू डी विथ प्लस टू डी। इट मीन्स दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ए एज 32। एंड अगर 4 टाइम्स ए रहता है 32, देन डेफिनेटली ए इज नथिंग बट 32 अपॉन 4 विच इज नथिंग बट ए। क्लियर हो रहा है ये इतना पार्ट। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, मतलब ए की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अनदर थिंग इज गिवन टू अस, दैट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट कंसीडर करोगे, एंड मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट कंसीडर करोगे, दैट इज ए माइनस टू डी विथ ए प्लस टू डी with a minus d and a plus d। ये जो रेशियो गिवन है, the ratio is nothing but 7 as to 15, something like this। But again, you know that a plus b into a minus b, which is nothing but a square minus b square, correct। अगर ये याद करते हैं यहाँ पे यूज, देन न्यूमरेटर पे क्या कंसिडर करोगे, a minus b, a plus b, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। बट यहाँ पे बी की वैल्यू न्यूमरेटर में आपको 2d मिलेंगे। यहाँ पे कंसिडर करोगे ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट 7 as to 15। गेटिंग दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करो एंड कैलकुलेशंस देखो, क्या मिलेगा आपको, 15 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी स्क्वायर। 15 इंटू a square minus 4 times d square equals to 7 into a square minus d square। But already we have find out what will be the value of a, which is nothing but 8। अगर a का वैल्यू 8 रहने वाला है, then obviously a square is nothing but 64। सिर्फ आपको यहाँ पे करनी है ये वैल्यू पुट। So after calculating this, you will get the values of b। Okay, see, this will be the KCL. 15 times this, and so on. Okay, sorry, my mistake. It should be plus 3d and minus 3d, right? Because we are considering the AP with common difference 2d, right? Okay. सो ये आपको न्यूमरेटर पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करने के बाद ये ऐसा कुछ रहेगा आपका आंसर, दैट 8 into 8 स्क्वायर व्हिच इज नॉट, बट आपको कंसीडर करना होगा। कैंसिल आप कर पाते हो, राइट। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको, डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, बट वी नो दैट ये जो 8 into 8 रहेगा व्हिच इज नथिंग बट 64, and 64 twos will be 128। So you will get d square as a 4। It means that अगर d square की value 4 रहती है, then d is nothing but plus minus 2। तो for first case you will consider d as a 2। तो आपको numbers कैसे मिलेंगे, हमने number कैसे consider किए थे, a plus d, a minus d। Next one will be a plus 2d and a minus 2d। That's it। क्लियर हो रहा है ये पार्ट, समझ में आ रहा है। तो ए का वैल्यू अभी आपके पास है, डी का वैल्यू आप 2 कंसीडर करने वाले थे, तो डी का वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये ऐसे मिलेंगे वैल्यूज, या तो वो 4 नंबर्स आप बोलोगे 2 6 10 14, अदरवाइज डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेंगे व्हिच इज नथिंग बट 14 10 6 एंड 2। बट व्हाटएवर इट इज, वो 4 नंबर्स आपके फिक्स रहने वाले हैं जो ये गिवन कंडीशंस फुलफिल करते हैं। क्लियर हो रहा है ये पार्ट।
थोड़ा सा अलग टाइप था, बट ऑब्वियसली एपी में कुछ डिफिकल्ट हो भी नहीं सकता है, राइट। सी अगेन देखो, पीवाईक्यू है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है मतलब इजीली आपको आंसर इसका मिल ही जाएगा। ओनली केस इज दैट कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हो। आई कैन सी कुछ कुछ आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था सम ऑफ द नंबर्स के बारे में, मतलब हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। बट अगेन नो दैट वी हैव टू फॉर्मूलाज फॉर एसएन। अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता होता है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करने वाले थे। बट you can see that in the given question we have the value of a1 as well as an, करेक्ट। सो सिर्फ करो यहाँ पे यूज एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. So after putting the given values here, sum of all terms is given as 400. That is Sn will be 400. N तो हमें करना है find out. So it will be as it is. First term is given as a 5 and last term is given as a 45. Okay. So n is nothing but ये जो 400 है अपॉन 2 आएगा न्यूमरेटर में, एंड ये जो आपको इंटू 50 मिलने वाला था ये जाएगा डिनोमिनेटर में. सो 0 0 will get cancelled, 5 1s are 5 8s are 8 2s are, so you will get your answer of n as 16. Getting this one? कंपैरेटिवली इजी रहते हैं क्वेश्चन, एंड अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे आपको ये खुद को भी समझ में आ जाएगा दैट डेफिनेटली हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है. ये अगर पूरा वन शॉट आप अच्छे से देख लो, बिकॉज इस सेशन में मैंने ईच एंड एवरी टाइप के 2 क्वेश्चन कंसिडर किए. अगर अच्छे से कर पाते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, देन वेल मींस दैट आपका एपी तो हो गया है फिर फिक्स. ओके, इट इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन जो हमने फाइंड आउट किया था. ओके, नाउ सी यहाँ पे चेक क्या करोगे, 9th टर्म ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको T9 रहा था. द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज, इट मींस दैट आपको Tn का फॉर्मूला, Tn की वैल्यू करनी है फाइंड. बट वी नो दैट Tn इज नथिंग बट वो 9 सफी वाला फॉर्मूला आप यूज करते हो. अगर nth वैल्यू चाहिए तो n माइनस 1 टाइम्स d आप उसमें ऐड करने वाले हो. सो फॉर दैट फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. So you can easily say that first term is nothing but minus 15 in this case. D आपको करना है find, but we know that D is nothing but second minus first term. So you can see यहाँ पे second term आपको मिल रहा था -11 minus of -15. So it will be -11 plus 15. You will get your answer of a D as a whole. So now we have the value of A, which is nothing but -15. We have to find out the value of 9th term, मतलब n की जगह पे आप यूज करने वाले हो 9 एंड d का वैल्यू आपको मिला था 4. रेस्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हो, करेक्ट. जस्ट चेक. So 8 times 4 is nothing but 32. 32 minus 15, you will get your answer as a 70. क्लियर हो रहा है ये पार्ट सबको? डन. नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये देखो, ये थोड़े से उल्टे पुल्टे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं बट आप कर सकते हो. ओके, थर्ड ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन है मतलब तो आप कर सकते हो. If the 6 times of 6 term of an AP is equal to 9 types of 9 term, 6 times मतलब 6 into A6 is equal to 9 times of 6 times of A6 is equal to 9 times of A9, right? Then show that 15th term is 0. अब 15th term आपको 0 फाइंड आउट करना है, मतलब A15 is equal to, बट आपको क्या पता है A15 is nothing but A plus 14 times D. करेक्ट. देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं. 6 times A6 ऐसे कुछ आपके पास है,
but we know that a6 is nothing but a plus 5 times d is equal to 9 times a plus 8 times d. आप डेफिनेटली इतना तो कर ही सकते हो, राइट? आगे क्या सॉल्व करना है, कैसे वहां तक जाना है, बाद में देखते हैं, बट ये तो क्लियर हो रहा है। हमने क्या किया, सिर्फ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स बी, हम ये सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे थे यहाँ पे। देन नेक्स्ट केस क्या, देखो यहाँ पे आई कैन सी देयर इज अ 6, देयर इज अ 9। तो अगर आप 3 लेते हो कॉमन, मतलब आप दोनों साइड पे डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 कंसीडर कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ये करते करते आपको कहां तक जाना है, आपको यहाँ तक जाना है। देखते फिर, अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे देन आपको कुछ मिलेगा, 6 टाइम्स ए प्लस 30 टाइम्स डी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ए प्लस 72 टाइम्स डी। जो भी एलएचएस वाले नंबर्स है आपको 972 से मिल रहे थे, तो सब कन्वर्ट करो आप यहाँ पे आरएचएस पे। सो यू विल गेट दैट 9a माइनस 72 टाइम्स डी, सॉरी 9a प्लस 72 टाइम्स डी माइनस ऑफ 6 से माइनस ऑफ 30 डी इक्वल्स टू 0, राइट? सो अगर यहाँ पे आप चेक करते हो क्या मिलेगा, 9 माइनस 6 विच इज नथिंग बट 3 है, 72 माइनस 30 विच इज नथिंग बट 42 टाइम्स डी इक्वल्स टू 0। दैट इज, अगर आप दोनों में से 3 लेते हो कॉमन, देन 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 14d इज इक्वल टू 0। ये ऐसे कुछ आपको मिला, 3 into something is equal to 0, that definitely a plus 14d का वैल्यू आपको 0 मिलने वाला है। But already we know that with the formula for n which is given as a plus n minus 1 times d, ये जो a plus 14 times d था which is nothing but the value of a 15, मतलब ये ऐसे करते करते आपको क्या मिला, 15th term will be 0, that's it। देखो क्वेश्चन जब आप देख रहे थे आपको बहुत कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा था यहाँ पे, राइट? बट क्वेश्चन कितना सीधा साधा है, आपको सिर्फ ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने सिर्फ ये जो आपका ए एन का फॉर्मूला रहता है, हमने ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे 2 टाइम्स के लिए यूज किया। कुछ आपको 15th टर्म 0 फाइंड आउट करना था, मतलब ये आपको कहाँ पे तो चाहिए, एंड आफ्टर दैट a6 एंड a9 के लिए हमने सिर्फ ए एन के फॉर्मूलेस यहाँ पे यूज किए, दैट्स इट। आर यू गेटिंग दिस वन? क्लियर हो रहा है ये पार्ट? ज्यादा से ज्यादा इतना ही टफ क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, ठीक है? कंपैरेटिवली देखोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। सी जस्ट गो थ्रू, सिर्फ एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओके? देन मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़े हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, बट जैसे मैंने बोला चाहे एपी के क्वेश्चंस वो कितना भी आपको घुमा फिरा के पूछे, हमेशा वो आपको इजी ही रहने वाले, बिकॉज सिर्फ एन या फिर एस एन, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 45, मतलब S5 का वैल्यू आपको 45 मिला है, ओके? and that of first 15 terms is 435, मतलब S15 का वैल्यू आपको 435 given है। Then you have to find that what will be the value of sum of n terms, okay? ठीक है, देखो आपको और कुछ भी पता नहीं है, आपके पास सिर्फ S5 का वैल्यू है, आपके पास सिर्फ S15 का वैल्यू है, बट टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं, बिकॉज वी नो दैट S5 S15 अगर ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको यूज करना है Sn का। यहाँ पे 5 है, ऐसे कुछ आपको क्लियर हो रहा था, सो S5 is nothing but 5 by 2 times first term plus fifth term। सिमिलरली अगर आप S15 के लिए चेक करते हो, देन S15 इज नथिंग बट 15 अपॉन 2 टोटल टर्म्स जो आपको क्लियर होते हैं इस नंबर से, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस 15th टर्म, ये ऐसे कुछ आपको मिलने वाला है, राइट? अब जो आपको पता है, जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, जस्ट कंसीडर करो।
S5 is given as a 45. ये जो 5/2 आपका RHS पे, अगर आप उससे LHS पे शिफ्ट करते हो तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म। क्या रहने वाला है वैल्यू, वी डोंट नो, बट जितना हम कर सकते हैं सबसे पहले वो कंसीडर करो, दैट यू विल गेट हियर 5 9 is 45, सो आपको मिलेगा 18 इज इक्वल टू A1 प्लस A5। जैसे आपने ये फर्स्ट वाला सॉल्व किया, वैसे ही अगर आप सेकेंड इक्वेशन दैट इज जो आपको S15 का वैल्यू गिवन था वो अगर कंसीडर करते हो, then S15 is given as a 435, right? So 435 into 2 upon 15 is equal to A1 plus A15। समझ में आ रहा है? अगेन आप क्या करोगे, 15 वन जा यहाँ पे चेक करोगे, जो आपको कुछ मिलने वाला है करेक्ट 29, सो 29 टू जा 58, आपको यहाँ पे मिलेगा A1 प्लस A15 का आंसर। इसके बाद आप सिर्फ A5 एंड A15 की जगह पे वैल्यू पुट करने वाले, दैट्स इट। सी क्लियर हो रहा है ये पार्ट, ये इतना समझ में आ रहा है? अब क्या करना था आपको, ये जो आपके पास S15 था विच इज नथिंग बट A प्लस A5, 2A 5D ऐसे कुछ आपको मिलने वाले थे वैल्यूज। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आपको A एंड D में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलने वाला है, सो वो सिर्फ आपको करना है यहाँ पे यूज। समझ में आ रहा है ये पार्ट, क्लियर हो रहा है? करने की कोशिश करो फिर। ओके, जैसे हमने लास्ट किया था A1 प्लस A5, कुछ आपको मिला था आई थिंक यस 18, एंड यहाँ पे आपको A1 प्लस A15 मिला था वैल्यू 29 एंड 29 टू जा विच इज नथिंग बट 58। यू कैन डू वन मोर थिंग हियर, ये जो हमने कंसिडर किया था A1 माइनस A5, सपोज आप फर्स्ट में से, ये जो इक्वेशन आपके पास है सेकेंड में से A1 प्लस A15 इज इक्वल टू 58 में से ये वाला कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या मिलेगा देखो। बिकॉज अगर आपको SN फाइंड आउट करना है, मतलब या तो एन वैल्यू या फिर AN का आपको पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो देन A1 विल गेट कैंसल, A15 माइनस A5 इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिलेगा 40, तो सिर्फ A15 एंड A5 का यूज करो। इसके लिए अगेन वो का AN का फॉर्मूला, so A15 is nothing but A minus 14D minus of A minus 40 which is equal to 40. So again bracket के बाहर है minus sign, then we have to change its sign, is equal to 40. Plus A minus A will get cancelled. Okay, then 14D, just a minute, ये क्या हुआ, sign, yes, there should be minus sign. So 14D minus 4D which is nothing but 10D, 10D का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे 40। अगर 10D आता है आपका 40 then definitely D will be 4, and अगर D का वैल्यू 4 मिल रहा है तो अगेन आप यहाँ पे प्लेस करो, so that you will easily get the first term as a 1। ओके, समझ में आ रहा है ये बात? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको आंसर निकालना, दैट्स इट। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए, एक दो बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना पड़ा है, यहाँ पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, बट whatever it is, the whole chapter that arithmetic progression is based on only formulas। या तो आपको n का फॉर्मूला यूज करना है या फिर आपको Sn का फॉर्मूला यूज करना है। एसेंशियली गिवन डेटा किस टाइप का रहता है, बेस्ड ऑन इट आप फिक्स करोगे कि या n/2 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का यूज करने वाले या फिर आपको सेकेंड फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। क्वेश्चन देखते समय आपको ऐसे लगेगा कि क्या पूछा गया है, बट ट्रस्ट मी इतना भी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। द थिंग इज दैट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। सी
m टाइम्स nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म. हमने जस्ट लास्ट वो क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट 6 टाइम्स 6 टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स 9th टर्म. देन आपको 15th टर्म फाइंड आउट करना था. एंड यू नो व्हाट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 10. सीईटी में सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, बट सिर्फ एम एंड एन की जगह पे पी एंड क्यू था. बट अगर आप टाइप चेक करते हो, अगर आपको ये ऐसा कुछ मिल रहा था दैट m टाइम्स am इज सेम एज n टाइम्स an, देन हमेशा आपको m प्लस nth टर्म 0 ही मिलता है. देखो मतलब जो सीबीएसई में आपको एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एज अ रिजल्ट याद रखना पड़ता है. ओके, करोगे क्या जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, सिमिलर वे में आपको फाइंड आउट करना है. n टाइम्स am इज गिवन एज n टाइम्स an, मतलब ये ऐसे कुछ आप करोगे यूज m टाइम्स nth term is equal to n times nth term, but we know that nth term is nothing but a plus m minus 1 times d. tn की जगह पे आप यूज करोगे a plus n minus 1 times d. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सारे एलएचएस वाले टर्म एलएचएस पे शिफ्ट कर दो, सो दैट अगर यहाँ पे आप चेक करते हो तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा m टाइम्स a प्लस m टाइम्स m माइनस 1 टाइम्स d माइनस ऑफ n a माइनस ऑफ n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स. So as you can see here, what they have done, ma and na एक साथ लिखे हैं, which is nothing but हमने a लिया है उसमें से कॉमन. यस, एंड फॉर दैट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा एज एन एग्जांपल. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ से आप d अगर कॉमन लेते हो तो d कॉमन लेने के बाद ये m एंड ये वाला केस which is nothing but d times m plus n into n minus n minus of n minus n is equal to 0. So again दोनों ही टर्म से ये माइनस वन ये ऐसे कुछ मिलेगा आपको. क्लियर हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से सॉरी एलएचएस जो दो टर्म्स आपके पास है दोनों में से आप ये ले सकते हो कॉमन. सो आई कैन राइट हियर a टाइम्स m माइनस n प्लस m माइनस n टाइम्स d टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस 1, ये ऐसे कुछ मिलेगा. तो अगेन आप m माइनस n कॉमन कंसिडर करोगे. अगर m माइनस n आता है कॉमन तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट में रहेगा सिर्फ a वाला, यहाँ पे रहेगा ये बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज. सो m माइनस n टाइम्स a प्लस d टाइम्स n प्लस n माइनस 1, राइट. अगेन a इंटू बी इज इक्वल टू आपको d मिल रहा था. a इंटू बी की वैल्यू अगर आती है d, देन डेफिनेटली उसमें से एक तो रहना चाहिए 0, तो m तो रहने वाले हैं, राइट. इट मींस दैट a प्लस n माइनस 1 माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0. तो क्या आप ये देख पा रहे हो, इट इज सिमिलर टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d. फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज, n की जगह पे सिर्फ आपको m प्लस n दिखाई दे रहा है, मतलब द होल टर्म इज नथिंग बट m प्लस n टर्म. ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यही रहेगा आपका m प्लस n का वैल्यू. बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 मार्कर के लिए पूछा जाता है, देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर a टाइम्स is equal to n times of an, then m plus nth term is equal to 0. ये हमेशा आपको मिलने वाला है. Yes, definitely we'll take a revision for differentiation. Next to next week से हम calculus start करने वाले हैं. Okay? So done up to this. So this will be the session. We'll just end this session here. नेक्स्ट सेशन में हम अगेन ऐसे ही इम्पोर्टेंट एज वेल एज, जैसे यहाँ पे आप ये ट्रिक देख पा रहे हैं, इस ट्रिक का यूज करके नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय. स्टडी करते रहो, अच्छे से स्टडी करो एंड पॉजिटिव माइंडसेट से स्टडी करो. ओके.